Hello everyone, I'm Shashwat Srivastav and I belong to Prayagraj, Uttar Pradesh, and I've cleared the ND written examination twice. And in this video, I'm going to be explaining you how did I manage to crack the Indian examinations in just a mere week. I know it sounds challenging, but it definitely is possible. Now, before starting on to the video, I would like to give you a small disclaimer that this experience is based on my personality and myself. It does not necessarily means that by following this plan, you will score as similar as me, or less than me, or greater than me. It is dependent upon your aptitude and your confidence and your ability. It is not related to me in any ways. Just before starting a video, I would like to explain to you my background. I was a JEE candidate and I was preparing for JEE since class 11th. I was a dummy student, and in 2 years I prepared for JEE as well as in NDA. After just I think I was just 1 week ago I was preparing for JEE, and then I stopped JEE preparing for JEE, and then 3 to 4 days I prepared for NDA, which we will be discussing later on in the video. How did I manage to do it? But basically, what I'm trying to explain is I'm from a JEE background, so basically it might seem that maths was easy for me, and other subjects and aptitude basically was better and easier for me to grapple. It might not be the same case with you. You might be from some another background. You might not be good in mathematics. You might not have even covered your syllabus yet. But one thing I'm sure about that in this video, if you watch it till the end, there won't be any single doubt or confusion left about how would you crack the NDA written examinations. And I'm here to guarantee you that if you follow my plan, then if not in 1 week, if not in 2 weeks, but indefinitely you will crack NDA based on your aptitude, based on the least time taken by you. Because as I already said, it all depends on you. There might be some people with you or even you who might clear this exam by only studying 2 days, and some might take 15 days. But and in the basis of my opinion, I don't consider this exam as a very big examination. I think even someone who's starting from scratch can easily clear this examination in 15 to 20 days. How? Let's get started. So basically नेशनल डिफेंस एकेडमी 900 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से कट ऑफ जाती है 300 से 350 मार्क्स। उसमें से दो पेपर होते हैं आपके, एक होता है जीएटी एंड दूसरा होता है मैथ्स। नाउ जीएटी 600 मार्क्स का होता है और मैथ्स होता है 300 मार्क्स का। बेसिकली लोग कहते हैं कि ये मैथ्स वाला पेपर इज क्वालिफाइंग इन नेचर, वेयर एज जो जीएटी वाला पेपर होता है इट इंक्रीजेस योर मार्क्स। बेसिकली आपको क्योंकि इस समय से सिर्फ कट ऑफ निकालनी है, ना तो आपको रैंक चाहिए बट आपको एसएसबी देने का मौका चाहिए। तो उसके लिए आप सबसे पहले आपको क्या ट्राई करना चाहिए कि जो मैथ्स का 300 का बैरियर है, क्योंकि हम सबको पता है कि इन दोनों में स्पेसिफिक मार्किंग भी होती है जो कि मैं यहाँ पे शो कर दूंगा, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ। अगर आप मैथ्स में उतने मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपकी जीएटी की कॉपी चेक नहीं होगी। भले ही आप जीएटी में 600 ले आइए, लेकिन अगर मैथ्स में आपने कट ऑफ नहीं क्लियर करी तो फिर आपकी कॉपी चेक नहीं हो सकती है। इसलिए ढेर सारी स्ट्रैटेजीज आपको जीएटी से हट के मैथ्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि बेसिक जीएटी जो है वो होता है इजी सब्जेक्ट, बट मैथ्स में ही हेयर मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स फॉल इनटू दिस ट्रैप, क्योंकि वो ऑलरेडी जीएटी जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो वो पढ़ते हैं, पॉलिटी हिस्ट्री तो पढ़ लेते हैं, बट मैथ्स जो एनडीए की आती है वो बेसिकली जेई से ही आस ही पास लेवल की आती है। इसमें जो जेई के एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो 12th में मैथ्स अच्छी है जिनकी, उनको इसमें एडवांटेज मिलता है। सो बेसिकली मैं बताना चाहता था कि ये जो चैप्टर वाइज प्रायोरिटी लिस्ट है ये लर्न विद सुमित ने डाली हुई है, इन्होंने सर ने। और बेसिकली एल्जेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, 2D 3D और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। ये प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप प्रोबेबिलिटी छोड़ सकते हो, बट स्टैटिस्टिक्स करके जाना, 100% सवाल आता है, तुरंत कर लोगे, बहुत ईजी सवाल आता है। एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री ये स्कूल से ही आपके अगर बेस बने हुए हैं पहले से, अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। एल्जेब्रा करके हुए जाना, ट्रिग्नोमेट्री ऊपर ऊपर से फॉर्मूला देख के चले जाना, आसानी से सवाल बन जाते हैं। इस वीडियो ने इन्होंने एक्सप्लेन करे हैं टॉप के चैप्टर्स। बस ये वीडियो में जो जो चैप्टर्स उन्होंने मेंशन किए हैं, अगर तुम ये भी कर लोगे तो 100% आराम से एनडीए की कट ऑफ निकल जाएगी, इनफैक्ट तुम्हारी रैंक भी आ सकती है। साथ ही साथ जो बायोलॉजी जैसे चैप्टर्स होते हैं उनके लिए एक फिजिक्स वाला की लास्ट फिस करके सीरीज़ आती है, इसको मैंने फॉलो किया था जेन्युइनली। बायोलॉजी की मैंने ये इसके वन शॉट देखे थे, और साथ ही साथ अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो बेसिकली यहाँ पे ओके देयर यू गो, शक्ति बैच का ये लेक्चर है। शक्ति बैच पे आप अगर क्लिक करते हो तो नोट सेक्शन में जाके आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। मैं शॉर्ट बना दूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है कमेंट करना, और इसके नोट्स बेसिकली पढ़ सकते हो। ये जो स्लाइड्स आती हैं ना, ये स्लाइड्स में हर चीज़, आपको कोई भी बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन, सारी स्लाइड, सारी थ्योरी, हर चीज़ें कवर कर लेती हैं।
और मतलब बेसिकली आप अगर ये करके जाते हो ना तो बेसिकली आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरा हर चीज़ हो जाएगी। जितने भी मार्क्स इतने कम टाइम में आप चाहते हो उतने बायोलॉजी में फुल स्कोर कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट मैथ्स, मैं देखो झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने मैथ्स का कोई भी ऑनलाइन लेक्चर नहीं देखा था। मेरी मैथ्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थी, बट स्टिल मैंने मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैथमेटिक्स के मॉक टेस्ट बहुत दिए थे और साथ ही साथ मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। उसके लिए आप एक मार्क्स ऐप करके होता है, उसको यूज़ कर सकते हो। इस मार्क्स ऐप पे आपको बेसिकली एनडीए के सवाल मिल जाएंगे जिसको आप डायरेक्टली मैथ्स के सवाल लगा सकते हो। एक ही आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, ढेर सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, और अगर 350 के ऊपर मार्क्स आने लगेगा तो आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आपके मार्क्स 300 से भी कम आ रहे हैं, 200 से भी कम आ रहे हैं, आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी प्लेलिस्ट फॉलो करो, एक बार अच्छे से फॉलो कर लोगे तो बस रिवाइज भर करने के लिए जो नोट्स बनाओगे, इसको ऐसा नहीं करना है कि आप ये लेक्चर चला के सो गए, उससे आपको कुछ नहीं होगा। आपको लेक्चर देखना है, साथ ही साथ एक ऐसे कॉपी लेके बैठना है ना, जो लेक्चर चलता है उसको कॉपी में नोट करते जाना है, पॉज करना है, जहाँ पे कोई क्वेश्चन है वहाँ पे पॉज करके आंसर देना है। इसको एक्टिव रिकॉल कहते हैं। इससे आपकी प्रिपरेशन टॉप क्लास हो जाएगी। करते हैं जीएटी की, तो उसमें मैंने भी बेसिकली सब कुछ तो नहीं किया था, बट बेसिकली जो इंग्लिश है और बेसिकली एक सब्जेक्ट मैंने किया था इसमें से, जिसका नाम है पॉलिटी। क्योंकि बेसिकली पॉलिटी बहुत ईजी होती है और हम लोग जो कि साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, उनके लिए सबसे बड़ा प्रेफरेंस है पॉलिटी करो। पॉलिटी और ज्योग्राफी इतने मार्क्स देता है ना, आपको अंदाज़ा नहीं होगा। 4 घंटे का मात्र वन शॉट है, आप देख सकते हो, और 4 घंटे के अंदर इतने मार्क्स मिल जाएंगे ना, मैथ्स सोच तो कभी नहीं दे पाएंगे। सो अगर आपको जीएटी एकदम आप जीरो पे है तो आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी से स्टार्ट करना चाहिए। बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप आगे भी बढ़ सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम ऑल, इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप बस ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग की, चाहे किसी और की भी फॉलो कर सकते हो। मैंने फिजिक्स वाले को फॉलो किया था, जो कि ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए। आपको रूल्स जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली कॉमन सेंस पे तुम आंसर दे सकते हो, जैसे कि तुम स्कूल में देते आए हो। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। बस अपनी वोकैबुलरी पे काम करो, हल्के हल्के डिक्शनरी वाले वर्ड्स देखते रहो, और जितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, उतने ढेर सारे वर्ड्स नए नए एक्सप्लोर होते जाएंगे। अगर आपके पास टाइम होता तो मैं आपको सजेस्ट करता कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो और अच्छी रीडिंग हैबिट्स डालो। बट अगर आपके पास टाइम की कमी है, और इनफैक्ट अगर आपके पास टाइम है भी, तो भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ना, उसमें आपको अचानक से नए, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन खोल लोगे ना, अचानक से आपको लगेगा कि यार ये कौन सा वर्ड है, ये कौन, मतलब आपको डिक्शनरी पे आपको खोजने के लिए आप मतलब परेशान हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल लाइम लाइट है, अब मुझे ऐसे में खोजता तो मुझे शायद ना मिलता, बट बिकॉज इट इज़ इन अ क्वेश्चन, तो मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। ऐसे आपकी वोकैबुलरी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकती है। टू कंक्लूड, मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक वीडियो है। आप ऐसी 100 वीडियोज़ भी देख लेंगे तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपको लिटरली कुछ करना है तो आपको खड़े होने पड़ेगा, आपको किताब खोलनी पड़ेगी। यू हैव टू डू द टफ थिंग। वही चीज़ टफ है, ये तो सिर्फ 10% 5% है। मैंने कुछ भी नहीं बताया है। सेम इन्फॉर्मेशन आप चाहो तो चैट जीटीपी, यूट्यूब्स और ढेर सारे अलग अलग चैनल्स हैं। अभी आप नीचे रिकमेंडेशन में भी कई चैनल्स आ रहे होंगे, कई वीडियोस आ रहे होंगे। बट हमेशा याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक एस्केप है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एस्केप है हार्डवर्क से। ये स्ट्रैटेजीज देखना कि 1 महीने में एनडीए कैसे क्रैक करें। आपके पास जितना भी समय है, नो मैटर व्हाट, अगर अब मैंने 4 दिन में भी 3 दिन में भी एनडीए क्रैक किया है, यानी कि किया तो जा सकता है। तो अगर किया जा सकता है तो क्यों ना किया जाए। जितना भी टाइम आपके पास बचता है, अपनी रिसोर्स एलोकेट करिए। ये एक आइडियल प्लान है, आप इसको अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं। जितने भी आपके रिसोर्सेज बचे हैं उसको एलोकेट करके एक प्लान बना के उस पर काम करिए। रोज़ अगर आप 3 से 4 से 5 घंटा भी पढ़ेंगे, क्योंकि अब तो काफ़ी कम दिन बचे हैं, आप 3 से 4 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 3 से 4 घंटे में तो आपकी रैंक आ जाएगी आराम से। बेसिकली टू समराइज, सब कुछ पढ़ने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो। सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ो जो कि कम एफर्ट में ज़्यादा आउटपुट दे सकें। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। रोज़ पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ एक दिन में बहुत ढेर सारा पढ़ लेना। और तीसरी बात यह है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते जाओ, छान मारो। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर ही तुम्हारा एकमात्र सोर्स होना चाहिए, और सारी बुक्स फेंक दो। उसके अलावा अगर आपको कोई भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं इस जर्नी में, तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। कोई भी आपको डिमोटिवेट या फिर डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी के साथ होता है। यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर एंड यू कैन डू इट। तुमने किया है, कईयों ने किया है, मैंने भी किया है, तुम भी कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।